میرے خیال میں جو آ گئے ہیں ان کو ویٹ کرانے کی بجائے جو نہیں آئے دے شوڈ سفر. آپ ڈاکٹر ہم شروع کریں. ہاں جی ویلکم. آپ ریمارکس کر دیں تو پھر ڈاکٹر نرگس. جی جی سوری میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر نرگس ناظر صاحب خود ہی کر رہے ہیں. اور کوئی ٹھیک ہے. ایکچولی جو لوگ آن لائن ہو گئے ہیں نا 13 لوگ وہ ناظر صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں. سو اس لیے کوئی ایسی خاص انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے کہ ناظر صاحب کو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آفر قبول کی. اور ہم شجاع کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے پرسیو کیا اور اس کو پورا اس کو مینیفیسٹ کیا. باقی نے ہمیں آئی ٹی دیا تو ظاہر ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. بٹ مین تھنگ از کہ ناظر بھائی نے ہماری انویٹیشن قبول کر لی. تو تھینک یو سو مچ. ناؤ پلیٹ فارم از یورز ناظر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everybody and thank you for inviting me and giving me the opportunity to come out of my epidemic isolation. اور بہت thank you for everyone کہ سب کے ساتھ ملاقات آج ہو رہی ہے. And special thanks go to شجاع بھائی اور وکی بھائی جنہوں نے سب ارینجمنٹ کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم we get together today. Thanks for everybody. To begin with prayer, God give me strength to change the things that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. ہم اپنی لائف کے اس حصے میں جب لائف پاتھ کے اوپر ہوتے ہیں ہمارا جرنی چل رہا ہوتا ہے. We go through different dimensions of life, to different dynamics of life. اور ہم اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, بہت سارے چیلنجز ایکسپیرینس کرتے ہیں, بہت سارے چیلنجز فیس کرتے ہیں اور ڈفیکلٹیز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور سم ٹائم لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈائلیماز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور ڈائلیما ایکچولی از اے پرابلم کہ دو ریئلٹیز ہیں اور دونوں ہی ٹروتھ ہیں اور ریئل ہیں لیکن دے اسٹینڈ اگینسٹ ایچ ادر. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم وی بیکم پاور لیس اور وی بیکم ہیلپ لیس. ہماری پاور ختم ہو جاتی ہے اس حساب سے. تو ہمیں اس کو ہمارے سیلف ایکسپلوریشن پروسیس میں جو کہ فائنلی وی ہوپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم موو آن کریں کہ ہم سیلف ڈسکوری کی طرف بھی جائیں کہ ہماری سیلف ڈسکوری کیا ہے. اس کو ذرا کرنے کے لیے موو کرنے کے لیے جو میں نے کچھ اسٹیمولینٹس دیے ہیں جسٹ فار دا سیک آف کہ جو ہمارا ہڈن اندر ایک جو ریئل ٹروتھ ہے ہم اس کو اگنائٹ کریں, ریئل سورس کو اگنائٹ کریں تاکہ ہم اویکن کر سکیں اس کو جو ہمارے اندر جان سویا ہوا ہے اس کو ہم اویکن کر سکیں اور اس کا بینیفٹ لے سکیں. The greatest help really we can give a person is to wake him up, to remind him who he really is. In truth, there is no any new statement, new ideas in the universe, only restatements of eternal truths. So ہمیں ان کو ضرورت ہے کہ the only need is to remember with it and remind it. That is very important. ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اپنے ریئل ٹروتھ کو جاننے کی کوشش کریں. When an egg is broken from outside, the life ends. And when the egg is broken from inside, the life begins. And keep that in mind, all great things always begin from inside. اور ایسے ہی ہمارے پیبلو پکاسو کہتے ہیں the meaning of life is to find your gift and the purpose of life is to give it away. یہ پیبلو پکاسو نے کہا. اور پھر ایسے ہی two days are very important in your life. One, the day you were born, and two, the day you know why. یہ مارک ٹوین بھی یہی کہتے ہیں, امام مالک نے بھی یہی کہا. اور اس کے بعد ہم دوسرے جو رومی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ I have been a seeker and still I am, but I stopped asking the books and the stars. I started listening to the teaching of my soul. ہمارا جو گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
इंसान के अंदर जो नेमतें हैं वो अनायत फरमाई हैं, वो हमारी तरफ गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो हम उस लाइफ को कैसे गुजारते हैं ये हमारा गिफ्ट है उसकी तरफ। और हम ये दो चीज़ें जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माइंड भी है और सोल भी है। जब हम स्टडी करते हैं अपने माइंड साइंस के स्टूडेंट्स के हवाले से अपने ब्रेन को, we know कि there are two hemispheres of brain, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है और एक राइट हेमिस्फेयर है। लेफ्ट हेमिस्फेयर is responsible for रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड, और इसमें हम बाल की खाल उतारना चाहते हैं हर चीज की, कोई वाकया पेश आ जाता है तो इसकी रीजन जानना चाहते हैं। Whereas on the other side, the right hemisphere जो है उसमें हम ये एक फीलिंग से ताल्लुक रखता है। इट इज रैंडम माइंड, रैंडम थिंकिंग माइंड, और इसमें फीलिंग्स हैं, इसमें इंट्यूशन है, इसमें इमेजिनेशन है, इसमें आर्ट है, होलिस्टिक थिंकिंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो राइट ब्रेन है, थिंकिंग है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने हार्ट के साथ और अल्टीमेटली अपने सोल के साथ। यूजुअली ऐसा द पीपल इन द ऑक्सीडेंट जो कि वेस्ट में है, दे आर डोमिनेंट, दे आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, और जो ईस्ट में है दे आर राइट ब्रेन डोमिनेंट। और हम यूजुअली इन दो में बटे रहते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल साइड पे चले जाते हैं, सोल की साइड पे चले जाते हैं, दूसरे जो है बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर रीजनिंग के ऊपर चले जाते हैं। जरूरत इसकी इस हवाले से है कि इनको दूसरों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और गोइंग बैक टू द अपना जो हमारे ओल्ड सेजेस हैं, न्यू सोजेस हैं, कि वो जानते हैं कि जब हम सोल जो है, चीज समझ लीजिए कि सोल जो है आपको, माइंड जो है वो रिएक्ट करता है, सोल जो है वो क्रिएट करती है। तो माइंड जब रिएक्ट में जाता है और सोल क्रिएशन में जाती है, दोनों पार्ट जो है बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, और उन्हें बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। So the soul speaks to you in feelings. Your feelings never lie to you. Honor your feelings. Listen to your feelings. Follow your feelings. Your feelings will never get in your trouble because your feelings are your truth. The person who feels, he creates, and the person who avoids feeling, he thinks. बुनियादी तौर पे इसको समझने की जरूरत है कि जो फीलिंग अवॉइड की जाती है वो कौन सी है। यूजुअली जब हम अपने अच्छे उसमें फीलिंग्स में होते हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, और हम क्रिएशन करते हैं अंदर से। लेकिन जो अवॉइड कर रहे होते हैं फीलिंग, वो पेन की फीलिंग्स होती है, उसमें पेन इन्वॉल्व होती है, और उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। और देन नेचुरली वी गो इनटू थिंकिंग एंड रीजनिंग के इसमें ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो हम रीजनिंग में चले जाते हैं उसके हवाले से। तो और ऐसे ही ब्लेस पास्कल कहते हैं, हार्ट हैज इट्स ओन रीजन which reason knows nothing of. We know the truth not only by the reason but also by the heart. तो ये दोनों पार्ट हैं। आप उन सब पुराने जो हमारे सेजेस हैं उनके अंडरस्टैंडिंग को भी देखिए, तो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज टू पार्ट्स। और जैसे ऐसे ही आइंस्टाइन कहते हैं कि कार्ल जंग कहते हैं, योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू लुक इनटू योर हार्ट। Who looks outside dreams, who looks inside awakens. और ऐसे आइंस्टाइन भी कहते हैं, the true sign of intelligence is not your knowledge but imagination. So he's talking about imagination. और उसके बारे में कहा जाता है आइंस्टाइन के हवाले से कि वो दोनों ब्रेन की साइड्स को इस्तेमाल करता था। और जब कभी कन्फ्रंटेशन होती थी उसको लॉजिकल साइड के ऊपर, तो फिर उसका जो कोट है बहुत मशहूर है कि I only want to know the thought of God, the rest are mere details. मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी मंशा क्या है, और उसके मुताबिक फिर बाकी तो सब मैं ये nitty-gritty है इसको फाइंड आउट कर लूंगा। तो उसमें हमें बैलेंसिंग की जरूरत है, उसको हम बैलेंस करें ताकि हम जान सकें कि what is happening within us. एक चाइनीज किंग जो कि अपने मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट करना चाहता था, प्रोग्रेस करना चाहता था, उसने अपने सेजेस को इकट्ठा किया और उसने कहा कि जो भी अवेलेबल इस वक्त नॉलेज है वर्ल्ड में वो ले आओ, ताकि मैं जो भी मैक्सिमम उसमें आउटपुट ले सकूं वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं अपने कंट्री में और उसमें डेवलपमेंट कर सकूं। तो उसने सब उन्होंने इकट्ठी की किताबें, सब लाइब्रेरीज भर गई किताबों से,
اور اس کو بتایا کہ this is all available knowledge in the world we have brought to you. اس نے کہا کہ نہیں, I do not have that much time. How can I read all these books and get the knowledge? So please condense it and shorten it so that I can get benefit of that. So وہ پھر اکٹھے ہوئے, they brought dozens of volumes of books and they said now we could conduct اس کو shorten کر سکتے ہیں اس form میں, لیکن اس نے کہا I do not have that much time too. اس کا اتنا میرے ٹائم نہیں ہے کہ اس کو کر سکوں, تو پلیز اس کو اور شارٹن کرو. So they came with 2 volumes of books. اور اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. And then they came only with 2 words, know thyself. اپنے آپ کو جاننے کی پہچاننے کی کوشش کرو. So this is very important کہ ہم ان 2 پارٹس کو کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم بیلنسنگ کیسے کرتے ہیں. ایک جیسے میں نے کہا کہ دونوں پارٹس ہیں, مائنڈ بھی ہے اور سول بھی ہے, اور ہم مائنڈ سول میں کیسے کنیکشن کرتے, تو اس کا ایرسٹوٹل کا ہے کہ ورچو لائز بٹوین 2 وائسز, 2 ایکسٹریمز کے درمیان میں ورچو ہے. اور ہم جیسے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں کہ رسول کریم کی بہترین دعا جو تھی وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ نہ تو آپ اتنا دنیا میں ہمیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی رہنا, دونوں کی اچھائی ہمارے لیے ضروری ہے. Our Lord give unto us the word that which is good, and in the hereafter that which is good, and guard us from the doom of fire. So اگر ہم بالکل دنیا میں چلے جاتے ہیں, دنیا داری میں چلے جاتے ہیں, دنیا میں گم ہو جاتے ہیں, تو آخرت ہماری جاتی ہے. اور اگر ہم بالکل دنیا کو تیاگ دیتے ہیں تو باہر بہت ساری چیزیں وہاں پہ مس ہوتی ہیں, جو کہ نیچرلی ایک ہمارا بیلنس کامیابی رکھ سکتے ہیں ہم. اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم 2 پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں, ایک پاؤں کو باندھا ہوا اور ایک پاؤں کو جو ہے وہ ہم ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہیں اور تھک جاتے ہیں, اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے دوسرا پاؤں بھی اوپن کرنا چاہیے. تو اگر ہم دنیا میں پھنسے ہوں تو پھر ہم اسپرچویلٹی کی طرف جاتے ہیں, یا اسپرچویلٹی میں گم ہوتے ہیں, پھر ہمیں دنیا کے بہت ساری چیزیں جو مس ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کو ہم ہینڈل نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہولنس بہت ضروری ہے. Now coming to the critical questions of what success mean to you. Actually this is the exploration process, جو ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ سکسیس تو بہت سارے لوگ اپنے حساب سے ڈیفائن کرتے ہیں, اور in reality there is no any specific definition of success. Success کی کوئی specific definition نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ success ہے. سو ہر ایک کے متعلق, ہر ایک کی ڈیفینیشن کے حساب سے, ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے سکسیس ڈفرینٹ ہے. جیسے ایمرسن کہتے ہیں, to talk often and much, to win the respect of intelligent people and affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave this world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition, even to know that one life has breathed easier because you have lived, this is to have succeeded. یہ ایمرسن کی اپنی ڈیفینیشن ہے سکسیس کے بارے میں, وہ اس کو سکسیس کہتا ہے. اور پھر نیچرلی دوسرے جو کہتے ہیں کہ سکسیس از کنگروئنس ود سیلف اینڈ ود ادرس, کہ اپنے ساتھ جو یکسوئی ہے وہ سکسیس ہے. اور جب آپ کی اپنے ساتھ یکسوئی ہوتی ہے, آپ ون ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, نیچرلی تب ہی آپ دوسرے لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی یہ اپنا جو میسج دے سکتے ہیں کہ یو آر ان وننس, یونیکنیس, اور جو ایک ہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کنیکٹ کرتے ہیں ود ہولنس. تو سکسیس از کنگروئنس ود سیلف اینڈ ود ادرس. اور دوسرے کہتے ہیں کہ ریئل سکسیس از ود سیلف. اٹ از ناٹ ان ہیونگ تھنگ but in having mastery, having victory over self. تو ہمارے اس حوالے سے یہ سکسیس کے معنی جو ہے وہ ہم اس کو خود کرتے ہیں. ایک پہلے چیز اور دوسری چیز جو ہے یہ ذرا دیکھ لیجیے, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. Success in realization of worthy goals. یہاں worthy goals کی یہ کچھ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں, اور ایسے ہی میں ویسے جیسے ہم دونوں پارٹس کی بات کر رہے تھے, اسپیشلی مائنڈ اور سول کی, سکسیس کمز فرام سکسیسفل ریلیشن شپس. ایک کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس سکسیس جو ریلیشن شپ میں آتی ہے, ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں یوزلی. اور ہم ایکچولی تو جیسے ہم مائنڈ اور سول کی بات کر رہے تھے, تو اس کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا
کہ ایک جو تھا جو کہ اپنی ایکسپلوریشن کے پروسیس میں تھا، اپنی پہچان کے پروسیس میں تھا، اپنی نوئنگ کے پروسیس میں تھا، اس کو معلوم ہوا کہ استاد ہے کہیں پہ اور وہ جنگل میں ہے کہیں، ان کا گھر وہاں رہتے ہیں اور ان کے پاس مجھے میرے سوالوں کے سارے جواب مل جائیں گے کہ لائف کیا ہے، میں لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس نے موو کیا جنگل میں، ڈھونڈا، جا کے پتہ چلا کہ بہت خوبصورت پیلس ہے، اور اس پیلس میں پہنچا وہ تو وہاں پہ بہت رونق لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، محفل لگی ہوئی تھی، اور the person whom he wanted to visit was a well educated and well suited. اور ایک میلہ لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ وہاں جاننے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. تو ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے کہا کہ I want to know something about life and مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے. تو اس نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ تھکے ہوئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، سر آپ ایسا کریں کہ دیکھ لیں یہ آپ آئے ہیں اور اس کو گھر کو دیکھیں، بہت اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ، آپ جائیں دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی ضرور دوں گا. تو جانے لگے تو انہوں نے کہا لیکن یہ جاتے ہوئے آپ ایک سپون دیا انہوں نے شہد کا بھر کے، اس نے کہا اس کا ذرا خیال رکھنا. تو ڈھونڈتے وہ گئے، آپ نے انہوں نے محل دیکھا سارا، بہت ونڈرفل جو تھا وہ دیکھنے کے لیے گئے. اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو استاد نے پوچھا کہ ہاں بھی دیکھ لیا سارا کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر میں گیا تھا دیکھنے کے لیے ہی، لیکن آپ نے مجھے ذمہ داری دے دی تھی، ہاتھ میں میرے سپون پکڑا دیا شہد کا، ہنی کا، میں تو اس کی حفاظت کرتا رہا، آئی ایم سوری میں سارا نہیں دیکھ سکا. تو استاد نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ آئے ہو تم، تھکے ہوئے ہو، تم نے بہت محنت کیا یہاں پہنچنے میں، تو کوئی بات نہیں آپ جا کر دیکھو اسی کہ کیا ہے. تو پھر دوبارہ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو جنت نظیر گھر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، ونڈرفل، بہت خوبصورت ہے، ہر چیز کی آرٹ وہاں لگی ہوئی ہے، سب ہو رہا ہے وہاں پہ. اور جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ استاد نے پوچھا کیا بھی دیکھا؟ اس نے کہا جی بہت ونڈرفل، یہی جنت نظیر ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت پہ آ گیا ہوں، بہت اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے. اس نے کہا کہ اچھا وہ شہد کا چمن؟ اس نے کہا وہ تو یہ گر گیا، میں تو اتنا کھویا اس میلے میں کہ اس میلے کے دوران میں تو بھول ہی گیا کہ یہ میرے ہاتھ میں شہد کا چمچ بھی ہے، اور میں تو بالکل اس کو بیٹھا ہوں. تو استاد نے کہا بیٹا یہی لائف ہے کہ you enjoy your life but also keep care of the spoon of honey with you. آپ نے spoon of honey کی بھی کوشش کرو کہ وہ آپ کے ساتھ بچا رہے. Now coming to the critical success factors of life. تو ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لائف کو بڑے ایک سکسیسفل وے میں موو آن کر سکیں اپنی بات کے اوپر. تو when we come to the critical success factors in life، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری لائف میں ایریاز کون سے ہیں جس میں ہمیں ہماری نیڈز ہیں، جو ہمارے ایریاز ہیں جن کے اوپر جو ایک طرح سے ہمیں کنیکٹ کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اس میں کچھ ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں، سوری، کچھ ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں. تو اس میں جو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. جیسے یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں جو پی ہے اسٹینڈ فار فزیکل، تو ہماری فزیکل نیڈز ہیں، کچھ نیچرلی یہ ویزیبل ہیں، یہ فزیکل ہیں، ہم ان کے بغیر بھی نہیں لائف کو موو کر سکتے. ای اسٹینڈ فار ایموشنل نیڈز، ہماری ایموشنل ضروریات بھی ہیں زندگی میں، ہمیں وہ ایریاز بھی جس کو ہمیں سارٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے. پھر ہماری مینٹل نیڈز ہے، دیٹ مینس کہ ہماری انٹلیکچوئل نیڈز ہیں. تو ہمیں انٹلیکچوئل لیزینس سے جب تک باہر نہیں آتے تو ہماری انٹلیکچوئل نیڈز بھی پوری نہیں ہوتی. تو انٹلیکچوئل نیڈز میں عام طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنے چینج بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہر چیز جو تبدیلی آ رہی ہے. جیسے علامہ نے کہا تھا کہ کیا ہے تبدیلی ہی ہر چیز ہے، اس میں ثبات ایک تغیر ہے زمانے میں. ہم تبدیلی تو ہر وقت آ رہی ہوتی تو ہم اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی تبدیلی باہر چینج از آؤٹ سائڈ از بگر دین دا چینج ان سائڈ، دین دا ڈیزاسٹر از نیئر. تو ہمیں اپنی انٹلیکچوئل لیزنس سے باہر نکل کے یہ بھی جاننے کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل جو کیپیسٹی ہے اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہماری اسپرچل نیڈ ہے، جو ایس ہے،
वो हमारा फोर्थ एरिया है, लेकिन बहुत डोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही, और इसी के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मैनेज होती हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल नीड है। तीनों एरिया नेचुरली इसके हमारे नॉन फिजिकल है, इनविजिबल है, किसी को बाहर नहीं पता कि इसके साथ स्पिरिचुअली क्या हो रहा है, इमोशनली क्या हो रहा है और मेंटली किस स्टेज के ऊपर खड़ा है इंसान। लेकिन फिजिकल में हम एवेल्युएट करते हैं कि जी उसने घर बना लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया। तो ये तीनों जो एरिया है ये जब तक डेवलप नहीं होते वो फिजिकल भी डेवलप नहीं होती, और हमें इन सारे एरियाज को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है। सो इनको हम दूसरी फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो वो एरियाज 4 हैं। एक लिविंग है, लिविंग इज अगेन फिजिकल एरिया, लविंग इज इमोशनल एरिया, लर्निंग इज नेचुरली इंटेलेक्चुअल एरिया, और लिविंग लीगेसी इज नेचुरली स्पिरिचुअल एरिया। अब अगर ये एरियाज एक दूसरे के साथ तौर अपार्ट हैं और डिफरेंट साइड पे खड़े हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यू कैनॉट रियली एक्सपीरियंस होलनेस इन लाइफ। आप बिखरे हुए टूटे हुए इंसान है, और जैसे अलामा ने कहा था जिंदगी क्या है चंदा नासर का ज़रूर तरतीब, मौत क्या है निजा का परेशान होना। तो आपकी जो जिंदगी है वो बिखरी हुई हो जाती है, आप होलनेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चारों एरिया जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें और आप होलनेस एक्सपीरियंस करने की पोजीशन में आ जाए। तो ये 4 एल जो है एक यूनिट बन जाए और आप एक यूनिट के तौर पर फंक्शन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो होता है यूजुअली, जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं कि ये एरियाज में यूनिटी कहाँ होती है कहाँ नहीं होती। छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ मैं कि अगर आपकी फिजिकल नीड्स यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं और आप फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए मिसाल के तौर पे ईस्ट में चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, उन कंट्रीज में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं कि जी वहाँ आपकी फिजिकल नीड्स तो पूरी होंगी, लेकिन आपकी इमोशनल नीड्स में भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं या फैमिली यहाँ पे है, बाकी जो आपकी इमोशनल नीड्स का कनेक्ट करना जिनका जरूरी है वो नहीं होती। तो आप एक टॉर्न अपार्ट पर्सन की तरह के ऊपर आप इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो आप का ये कोशिश ये होनी चाहिए कि आप चारों एरियाज पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें और आप होलनेस इसको एक्सपीरियंस करने की पोजीशन में आ सके। और जब ये चारों एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे होते तो फिर नेचुरली जो सिचुएशन राइज होती है वो ये है कि आदमी मर तो एट द एज ऑफ 45 जाता है, लेकिन उसको दफनाया जाकर सिर्फ 80 इयर्स की उम्र में जाता है। he is finished at the age of 45, सिर्फ उसको बरी किया जाता है 80 इयर्स में जाके। और जिसको अलामा ने कहा कि जिंदगी क्या है चंद नासर का जरूरत तरतीब, मौत क्या है नहीं जाकर परेशान होना। तो ये जो और है मौत क्या, यही तो अनासर हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक वननेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, होलनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और इन चारों एरियाज के हम अगर नेक्स्ट टाइम हमें मौका मिला इंशाल्लाह हम करेंगे, अगर आप तो वक्त होगा तो, कि चारों एरियाज के हम एनालिसिस करते हैं, लिविंग के, लविंग के, लर्निंग के और लिविंग लीगेसी के, कि हम इस वक्त मौजूदा पोजीशन में हम खड़े कहाँ पे हैं, इन चारों एरिया में हमारी पोजीशन क्या है, कौन सा एरिया बहुत आगे निकल गया है, कौन सा एरिया बहुत पीछे निकल गया है। और हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया में हम नीचे रह गए हैं, किस एरिया में हम आगे बढ़ गए, उसके एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 एंडोमेंट्स जो कि अल्लाह ताला ने हमें नेमत वदियत की या हमारे सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, जिनकी वजह से हम चारों एरियाज को एक तरह से एनालाइज करते हैं कि हमारे पास कमी किस एरिया में है और हमें किस एरिया को इम्प्रूव करने की जरूरत है और कहाँ पे हम बहुत आगे जा रहे हैं और उस एरिया को दूसरे साथ करने की, कनेक्ट करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन एरियाज को स्टडी करें, उनको एनालाइज करें और उसके बाद फिर हम एक वननेस और एक होलनेस की एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी एक एरिया में बहुत आगे निकल जाते हैं और दूसरा एरिया जो बहुत पीछे रह जाता है, तो यकीन करें कि एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि आप 98 लुडो के खेल को आप मिसाल बना लें कि आप 98 के ऊपर खड़े हैं, लेकिन आपको फिर वहां से एक स्नेक जो है वो निकलता है और आप फिर आके नीचे पहुंच जाते हैं। तो आपको फिर एक नई स्ट्रगल शुरू करनी पड़ती है उसी हवाले से कि उस एरिया को मैं कैसे अपग्रेड कैसे मैं करूं। नेचुरली वो कन्फ्यूशियस मुझे याद आ रहे हैं जो कहते हैं कि our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall। तो हम वहां से ग्रेटेस्ट ग्लोरी अपनी लेते हैं और फिर हम दूसरे नया सफर शुरू करते हैं। आप उनको कुछ भी कह लें, लेकिन कोई एरिया अगर आपका मिस हो रहा है और एक आप बहुत आगे चल गए हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत आगे चल गए हैं, इमोशनली बहुत पीछे रह गए,
تو آپ کو پھر گریب کر لے گا, آپ کو پیچھے گھسیٹ لے گا لے کے. تو ضرورت اسی لیے ہے کہ ان کو ہم بیلنس کیسے کر سکیں اور ان میں ہم آگے پھر بولنس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسے کر سکیں, پھر موو آن کر سکیں. تو ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ ان چاروں ایریاز کی ضرورت ہے, تو اگر آپ کہیں گے کبھی تو ہم اس کو ورکنگ کریں گے اس کے اوپر. تو یہ جو 4 ایریاز میں نے بتایا, اس میں 4 انوائرمنٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر ان کے انالیسس کرتے ہیں. اس میں ایک تو سیلف اویئرنیس ہے کہ ہماری اویئرنیس کتنی ہے اس ایریا کے بارے میں اور پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امیجنیشن کیا ہے, ہم سوچ کیا رہے ہیں, ہماری امیجنیشن اس کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے. اور تیسرا ایریا جو ہے وہ ہماری کانشیس ہے کہ اگر ہم جانا چاہتے بہت سارا, لیکن کانشیس ہمارا کیا کہہ رہا ہے اس کے حوالے سے. اور اگر آپ سب چیزیں کلیئر کر لیں تو ہماری پاور آف ول ہے, انڈیپینڈنٹ ول ہے کہ ہم ان کو کیسے حاصل کریں گے, اور کیا وہ ہمارے پاس ول موجود ہے اس کو حاصل کرنے کی. جو چیلنج دیا ہے, جو قدرت نے ہمیں گفٹ دیا ہے, اس گفٹ کو یوٹیلائز کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں. تو بیسڈ آن دیٹ 4 انوائرمنٹ ہم ان چاروں ایریاز کو انالائز کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, اور پھر اپنے ڈریم جو ہے ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ کون سی ڈریم ہے, کہاں پہ ہماری جو مسنگ ہو رہی ہے, اور کیسے ہم اس کو لے کے آگے موو کریں. تو یہ سارا کچھ سکسیس کے حوالے سے, اور پھر اسی ایریاز میں ہم نیچرلی اپنے کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کا تعین کرتے ہیں کہ کس ایریا میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کون سا ایریا جو ہے وہ نگلیکٹ ہو رہا ہے, کون سا ایریا جو ہمیں فلفل کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ one of the 4 ingredients of discipline of mental health is balancing. ہم بیلنسنگ کیسے کرتے ہیں اس میں, اور اس بیلنسنگ کا سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ گیونگ اپ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں گیو اپ کرنا پڑتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں نئی اڈاپٹ کرنا پڑتی ہیں تاکہ آپ ایک سینس آف وننس اور سینس آف ہولنس اچیو کر سکے. Now coming to this کہ بھئی یہ سکسیس کیوں, why do I really want to succeed, what is success, ہم سکسیس میں کیوں ہونا چاہتا ہوں سکسیڈ. پھر ہم فیلنگز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہماری فیلنگ جو ہے وہی ہمارے ٹروتھ بولتی ہے, وہی ہمارا سچ ہے, وہی ہمارا ساتھی ہے, اور اسی کی بیس کے اوپر ہم اپنے ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو جب ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی بھی آپ نے سکسیس اپنے لیے میجر کی ہوئی ہو, تو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ why all this success? You want to feel good, آپ اچھا فیل کرنا چاہتے ہیں, اس فیلنگس کو لینے کے لیے آپ سکسیڈ ہونا چاہتے ہیں. اور یہ پیس, یہ فیلنگس کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہر ایک کا سفر ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا سفر انڈیویجول ہے, ہر انسان اپنے اس پاتھ کے اوپر موو کر رہا ہے, اس کی ڈفرینٹ چیلنجز ہے, اس کی ڈفرینٹ امیجنیشن ہے, اور اس کی ڈفرینٹ ایک کارما ہے جس کے اوپر وہ موو کر رہا ہے, اور اس کے مطابق ہی اس نے اس کو پیس کو حاصل کرنا ہے. لیکن الٹیمیٹ اینڈ جو آپ وہ چاہتے ہیں زندگی میں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو پیس ملے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک پہلے پروگرام کر چکے ہیں, جیسے ٹرانسفارمیشن کا کراچی میں پروگرام ہم نے کیا تھا. یہاں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ریئلی زندگی میں کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں. وہ ایک انٹلیکچوئل پروسیس نہیں تھا, وہ ایک ایکسپیرینشل پروسیس تھا, اور ہر انسان کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا اس میں, اور الٹیمیٹلی وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے. ہر انسان نے, ہر جو پارٹیسپینٹ تھا اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اور اس کا جواب بھی اس کو خود ہی مل گیا. ہم نے اس میں الیگزینڈر کی مثال دی کہ جب الیگزینڈر دنیا سے چلا, دنیا فتح کرنے کے حوالے سے, تو اس نے کہا میں انڈیا بھی جاؤں گا, انڈیا بھی, ہندوستان بھی فتح کروں گا. تو اس کے جو وہاں تھے استاد تھے, جو اس کے اپنے دانشور تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں تم انڈیا جا رہے ہو, تو وہاں سے ان کو لے کے آنا, نیک اسٹیجز کو لے کے آنا. تو وہاں پہ نیک اسٹیجز مشہور تھے کہ انڈیا میں نیک اسٹیجز ہیں, ان کو لے کے آنا. تو ارسطو جو اسکندر تھا, انڈیا پہنچا, انڈیا فتح کیا, ارسطو کا شاگرد تھا, اور بہت سارے سوال تھے ذہن میں, وہ جاننا چاہتا تھا ان حوالوں سے. تو اس نے جب پتہ کیا تو اس نے کہا کہ ہاں, پتہ چلا کہ وہاں ایک مشہور جوگی ہے جو کہ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ان کو اٹھا لاؤ, یہاں پہ میرے پاس لے آؤ.
तो जानने वाले तो उन्होंने कहा कि देखें उठा तो हम लाएंगे, ले आएंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब नहीं मिल सकेंगे। प्यासा जो कुएं के पास जाता है, अगर आपने सवालों के जवाब ही लेने हैं तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। यहाँ तो आ जाएगा लेकिन वो आपके सवालों के जवाब नहीं देगा। तो सिकंदर ने अपने दूसरे कारिंदों को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुआ और वहां पहुंचा। देखा वो कहीं दरिया के किनारे सब्जाजार में बैठा धूप सेक रहा है, लंगोटी लगाई हुई है और जोगी जो धूप आंखें बंद है धूप सेक रहा है। तो आया सिकंदर, वहां पहुंचा, उसने देखा घोड़े इर्द गिर्द खड़े हो गए। उसने जोगी ने आंख खोली तो उसने देखा कुछ लोग आ गए, घोड़ों पर सवार हो गए। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि आई एम एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस, मैं नथिंगनेस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो सिकंदर मुस्कुरा पड़ा, कहा यार ये क्या बात हुई, नथिंगनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, ये क्या चीज है? उसके बाद उसने कहा कि मैं सिकंदर हूँ। उसने कहा मुझे पता है, पता चल गया कि तुम आए हुए यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं मखदूमिया से चला हूँ, मैंने फतह कर लिया, मिस्र को फतह कर लिया, मैंने ईरान को फतह कर लिया, मैं हिंदुस्तान में आ गया, हिंदुस्तान को फतह कर लिया। उसने कहा फिर क्या करोगे? उसने कहा फिर मैं आगे जाऊंगा, फार ईस्ट में जाऊंगा, मैं फार ईस्ट फतह करूंगा। फिर वो बताता है कि पूछता है फिर क्या करोगे? फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं वो मुल्क फतह कर दूंगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं सारी दुनिया फतह कर लूंगा। उसने कहा ठीक है, सारी दुनिया फतह कर ली, फिर क्या करोगे? फिर जी मैं आराम करूंगा। तो फिर जो जोगी था वो मुस्कुरा पड़ा, वो हंस पड़ा। तो फिर अच्छा, इतना कत्लो गारत करने के बाद तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हें पीस या आराम तुम्हें इतना कुछ करने के बाद मिलता है? और लंगोटी लगाओ मेरे साथ बैठे, मैं भी तो पीस ही ले रहा हूँ, मैं भी तो आराम और सुकून ही हासिल कर रहा हूँ। इतने कत्लो गारत के बाद तो सुकून मिलने की क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो सिकंदर जो था उसको जवाब उसका मिल गया और वो वहीं से वापस हो गया, आगे नहीं गया। रास्ते में उसका इंतकाल हो गया और जब इंतकाल हो गया तो उसने अपने जो थे बाकी के लोग उनको वसीयत की कि मेरे जनाजे में, मेरे रास्ते में, जनाजे के रास्ते में जो मेरी सारी ये दौलत है, ये मेरा जो सारी चीज़ें हैं, ये रास्ते में बिछा दी जाए, ये इनके ऊपर मेरा जनाजा लेके जाया जाए और मेरे जनाजे को तबीब उठाएं कि ये इतने सारे तबीब जो मुझे इलाज नहीं कर सके, ये उठाए मेरे जनाजे को और मेरे हाथ कफन से बाहर खाली निकाल देना। और जिसको हम इलामा ने कहा कि लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहाँ से, कि दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। तो अल्टीमेटली जो आप जाना चाहते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? इत्मीनान लेना चाहते हैं आप। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू फाइंड इन लाइफ इज नफ्स मुतमइन्ना। आप नफ्स मुतमइन्ना में जाना चाहते हैं कि मुझे वो इत्मीनान मिले। आप हर उस कंडीशन को हासिल करना चाहते हैं। अब उसका वे ऑफ जो उसको अचीवमेंट है वो डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट हो सकता है। सम जैसे मैंने कहा 4 एरियाज में, 4 एरियाज में आपने एक चीज़ हासिल कर ली और आप समझते हैं कि मुझे इसमें इत्मीनान मिल गया या मेरा नफ्स इससे मुतमइन हो गया, लेकिन बाकी जब 3 एरिया या 2 एरिया अगर वो इनकम्प्लीट है और उसमें पूरी तरह से इंसान को नहीं मिला तो फिर आप क्या करते हैं? फिर नेचुरली वो आपको पीछे घसीट सकता है। या आप हम सारी हिस्ट्री उठा के देख लें, इवन आजकल की जो हमारी सियासी तफ्तीशें चल रही हैं इनमें उठा के देख लें, कल कौन क्या कह रहा था, आज क्या हो रहा है उसके साथ। तो नेचुरली वो कम्प्लीशन नहीं है, नेचुरली वो होलनेस नहीं है, नेचुरली वो वननेस नहीं है, नेचुरली वो पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है, विजन नहीं है लाइफ में। तो इत्मीनान कहाँ से मिलेगा? तो बहरहाल जो आपका अल्टीमेट एंड बनता है वो क्या बनता है कि आप नफ्स मुतमइन्ना की तलाश में होते हैं और यही आपकी स्ट्रगल होती है सारी उम्र। अब आप उसको ये कह सकते हैं कि ये आप इल्यूजन में चले गए, उसकी खातिर आप नफ्स मुतमइन्ना हासिल करते करते इल्यूजन में गुम हो गए और आपको अल्टीमेटली वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन जब आपको वाकया ही एक कुदरत की तरफ से वो तोहफा मिल जाता है जिसको आप नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ये जवाब आ जाता है या अय्यतुन नफ्स मुतमइन्ना अर्जी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। But to the righteous God will say, O soul at peace, return to your Lord, well pleased, well pleasing, join my servants, enter my paradise. तो यह आपका एंड है और इसी को हम अल्टीमेट ट्रूथ कहते हैं, इसी को हम अल्टीमेट सक्सेस कहते हैं, जिसको हम अल फौजुल अजीम कहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस है। दिस इज द सुप्रीम ट्रायम्फ जो हम हासिल कर, अल्टीमेटली हम यही हासिल करना चाहते हैं। तो इस सफर में जाने के लिए
जैसे मैंने कहा कि हम डिफरेंट हर एक का इंडिविजुअल पाथ है, हर एक अपने इंडिविजुअल पाथ के ऊपर जा रहा है, वो यहाँ पहुंचता कैसे है, ये उसका टेस्ट भी है, ये उसका चैलेंज भी है, ये उसका सफर भी है, और ये उसकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस भी है। और एक वक्त आ जाता है कि अब आदमी सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस में चला जाता है और अपने आप को डिस्कवर कर लेता है, वो गिफ्ट उसको मिल जाता है, और फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गिफ्ट जो है वो अपनी कैसे आगे दूसरों को दे देता है, जिससे बेनिफिट होता है उठा सकती है जो बाकी कम्युनिटी है, बाकी लोग हैं, बाकी ह्यूमैनिटी है, उसको कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, और हर आदमी उस रास्ते के ऊपर चल के वहाँ पहुँच रहा है। तो उसमें जो आप यू कीप आस्किंग योर क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूटन जो था उसने कहा कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, एक आम सा साइंसदान हूँ, लेकिन आई आस्क ऑलवेज गुड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन का मुझे जवाब आता जरूर है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, सब्र करना पड़ता है, थोड़ा मुझे पेशेंस करनी पड़ती है, लेकिन मुझे जवाब मिल जरूर जाता है। आप यू कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और व्हाट द मीनिंग्स ऑफ माय सक्सेस, व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी। या आप एक डेली बेसिस के ऊपर या जब भी याद आए पूछे करें, तो आप अगर वाकई सिंसियरिटी के साथ जानना चाहते हो तो आपके जवाब आएंगे। मे बी एट दैट मोमेंट इज डिफिकल्ट, लेकिन जब आप रेडी होंगे तो फिर आपको जवाब भी उसके मिल जाएंगे। सो बी द सोर्स, आप अंदर से, आप खुद ही आपके अंदर मौजूद है, सारा कुछ अंदर ही मौजूद है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। अपने मन में डूबने वाली बात है, वहां से आपको इसके जवाब सारे मिल जाएंगे। वहीं पे है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, वहीं से जवाब सारा मिलने शुरू हो जाएगा। तो आप अंदर से ही जाके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि जब से वो फीलिंग आ जाएगी तो हम फीलिंग ही हमारे लिए ट्रूथ है, और वही हमें सही बता रही कि आहा नाउ इट इज राइट, जिसको हम कभी इंट्यूशन कहते हैं, कभी हंच कहते हैं। तो हम वो चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती है। हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप माइंड सेशन के स्टूडेंट हैं सारे, के एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शंस भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो सब अंदर मौजूद है। सो मूव विद डिविनिटी। जब आप इन चीजों को हासिल कर लें, या एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस कर लें, या एटलीस्ट दैट एनर्जी इज विद यू, और ये आपके साथ चल रही है, तो फिर आपको आगे पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, बहुत तलाश करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑल देयर। और उसको आप साथ लेके अपनी डिविनिटी के साथ उसको मूव करें, और वो आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी, या आपको हर वक्त वो मैसेज देती रहेगी कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये कर लें या ना कर लें। जैसे हम कहते हैं कि नफ्से मुतमन्ना में जाने के लिए उससे पहले नफ्से लवामा एक्टिव हो जाता है। जब आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो उसको एग्रीमेंट में नहीं है, तो कहता है ना 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 ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि हाँ ये कर लो, तो आपकी फीलिंग जो है कभी आपको झूठ नहीं बोलती। और इसीलिए हम कहते हैं कि गुनाह वो जो दिल में खटके, तो वहां से मैसेज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। टेक दिस डिविनिटी विद यू, और उसके साथ आप आगे मूव करें। जब आपको मैसेज अंदर से मिले कि ना करो तो ना करो, जब मैसेज मिले कि गो अहेड, दैट्स फाइन। By making any choice, follow the agenda of your soul। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आप या चॉइस मेकिंग जो है, ये आपकी बहुत बड़ी एक तरह से इंडिपेंडेंस है, एक आपकी रियलिटी है जो आपकी फ्रीडम है। ये चॉइस आपको फ्रीडम देता है। आप आज यहाँ भी जिस जगह भी खड़े हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस जो आपने पीछे जिंदगी में लिए हैं। आप जो भी आप चॉइस लेते हैं वो आपकी जिंदगी को फॉर्मेट करते हैं। जब कोई चीज ऐसी सामने आपके आती है, कुछ स्टिमुलस मिलता है, तो उसके रिस्पॉन्स करने से पहले एक गैप है, उस गैप को हम कहते हैं कि ये एक आपका चॉइस का गैप है, इसमें बहुत आपकी फ्रीडम है, और इस जिसको आप बेस्ट फ्रीडम कह सकते हैं, और इस फ्रीडम में आप चॉइस क्या लेते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो आप जब भी कोई ऐसा वक्त आता है चॉइस लेने का, तो आप जरूर पूछें कि आपकी सोल एजेंडा क्या है, ताकि आप वो चॉइस ले सकें जो आपकी सोल आपको मैसेज अंदर से दे रही है। और जैसे मैंने कहा कि सोल जो है वो फीलिंग में आपसे टॉक करती है, फीलिंग में आपसे बात करती है कि आप उस चॉइस को लेते हो, हाउ डू यू फील दैट। तो उस हवाले से आप वो चॉइस लें जो आपके सोल ऑफ एजेंडा। जस्ट आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट द सोल ऑफ एजेंडा ऑफ माय सोल। अगर अंदर से जवाब हाँ आ जाता है तो एक्चुअली गो अहेड विद दैट चॉइस। सो डू नॉट थिंक ऑफ पिंक एलिफेंट। यूजुअली हमने लर्न कर चुके हैं ऑलरेडी, think where you want to go, not where you do not want to go। So तकलीफ से बचने के लिए ये ना कहते हैं कि यार मेरे साथ ये ना हो, यार मेरे साथ ये ना हो।
जो चीज आप रेजिस्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में परसिस्ट करती है, ये याद रखिएगा। जो चीज आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा न हो, वैसा ही होगा, क्योंकि हर वक्त आप पिंक एलिफेंट में पड़े हुए हो। तो आपको जो जाना चाहते हैं उसका सोचें, ना कि जहां आप नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते वो प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको एक पेन का एहसास होता है या पेन फील करते हैं और उसी से बचना चाहते हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप उसका फोकस आपको उस तरफ रहे, आप ये जाने कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। मेरा दोस्त, उसका बेटा मुझसे बात कर रहा है कि ना साहब मुझे जन्नत के, वो मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता है, जहन्नम की आग से मुझे बहुत डर लगता है। नमाजी है, सब कुछ करता है, हर वक्त 5 वक्त माशाल्लाह उसको करता है, फॉलो करता है। तो मैंने उसका कहा बेटा कि आज के बाद तुमने ये सोचना बंद कर दो तुम्हें जहन्नम से डर लगता है, तुम ये सोचो कि तुम जन्नत में कैसे जाओगे, इसके बारे में सोचो कि मैं वो क्या काम करूं, और जन्नत के बागो बहार, उनके हवाले से वो जो नहरें बहती हैं उनकी बात सोचो, और फिर तुम कहोगे फिर वो काम करो जो तुम्हें वहां ले जाए। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जी मुझे जन्नत से डर लगता है, ये देखो तुम्हें जन्नत में क्या क्या खुशियां खूबियां मिलेंगी, तो आपकी थिंकिंग जो एंटायरली चेंज हो जाएगी। तो एक बादशाह जो कि और भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे उसके जहन में, ही वांटेड टू नो अबाउट लाइफ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अपना भेस बदल के अपने हाल से निकला, और उसको पता चला कि एक बहुत मशहूर सेज है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है। तो वो भी बाहर था, नेचुरली कहीं खेतों में था। तो वहां पहुंचा तो उसने सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि मेरा सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उस्ताद जो था वो बाग में था और फल तोड़ रहा था। तो उसने कहा देखो जरा मेरी हेल्प करो, मैं ये फल तोड़ रहा हूँ और ये तोड़ लूँ और उसके बाद खत्म करके फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो जब फल तोड़ हटे तो उसने कहा कि मैंने तुमसे सवाल पूछा था कि हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा देखो यार वो एक बुढ़िया है, उसने लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, गट्ठा उसका बड़ा बन गया है, लेकिन वो उठा नहीं पा रही, चलो हम उसको हेल्प करते हैं और लेके जाते हैं उसका जो है वो उसको हेल्प करें। उसने जाके बुढ़िया का गट्ठा उठाया, गट्ठा उठा के उसके सर पे रखा, उसको फारिग करने के बाद उसने फिर वही सवाल उठाया, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसने कहा कि देखें देखें वो एक जख्मी आदमी सामने आ गया है, वो बेचारा बड़ी बुरी हालत में है, जख्मी हुआ है, तो हम पहले उसको हेल्प करते हैं, फिर मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ। तो वहां पहुंचे, जख्मी था, उसको वो बरहम पट्टी करने लग पड़े और उसने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा एक्चुअली मेरा यहाँ पे खेत थे, मेरा घर था यहाँ पे, लेकिन इस मुल्क के जो बादशाह है उसके कारिंदों ने उसको मेरे खेतों को सत्यानाश कर दिया, मेरे घर को तबाह कर दिया, मेरे रिश्तेदारों को मारा पीटा और उन्होंने बड़ा जुल्म किया हमारे ऊपर, और मैंने बहुत बर्दाश्त करने के बाद आज फैसला किया कि मैं उसको कत्ल कर दूं। और उसको कत्ल करने के इरादे से मैं गया वहां पे उसके महल में, मैं उसके कमरे तक पहुंच गया था, लेकिन उसका कमरा खाली था, वो वहां पे मौजूद नहीं था। तो मुझे वापस आते ही उसके जो गार्ड्स थे उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मैं जख्मी हो गया। मैं उनके हाथ तो नहीं आया, लेकिन मैं जख्मी हो गया और उस वजह से मैं वापस निकला। इन द मीन टाइम जो वो बादशाह था जो सवाल पूछने के लिए नजर आया हुआ, तो वो मूव कर गया, वहां से जाना शुरू हो गया, खामोशी से उसने वापसी का शुरू कर दिया। तो उसने उस्ताद ने उसको बुलाया, उसने कहा भाई इधर आओ, तुमने अपने सवालों के जवाब नहीं लेने, कहाँ जा रहे हैं। तो इन द मीन टाइम ही केम बैक, उसने कहा जी मैं तो वही तो मैं हूँ जिसके के लिए ये गया था और कत्ल करने के लिए। मुझे आज अंदाजा हुआ कि मेरे जो लोग हैं वो कितना जुल्म कर रहे हैं अपनी पब्लिक के ऊपर। उसने कहा लेकिन सवालों के जवाब तो देते जाओ तुम। उसने कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज द पर्सन हु यू आर विद, including you yourself. The most important person in the world is whoever you are with, and including you yourself. And the most important thing to do is to help him or her, including you yourself. And the most important time is right now. So I think the most important time is really now for your self-exploration, to find the truth within yourself. It is not from outside, it is only inside, and explore yourself innerly. There are a lot of help available when you only intend to reach the truth of yourself. और वो आपका गिफ्ट है और
ले लें, उसके बाद लोगों को देना शुरू कर दें। तो थैंक यू very much for your patience और with prayers अब आपके सवाल हैं उनको हम देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। किसी को कोई सवाल हो तो वो स्टार्ट कर सकता है, अपना माइक स्टार्ट कर लें और सवाल कर लें। Anybody, please? Yes, Mariam. जी मैं पूछ सकता हूँ? I think Mariam is. चलो Yes, please, Mariam. Your voice is not visible, audible. No, it's not coming. Voice is not here. Mariam, please. आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, आप अनम्यूट कंट्रोल कर रहे हैं ना? नहीं, अनम्यूट है ऑलरेडी। अनम्यूट। अच्छा। मगर उनकी माइक उसमें कोई प्रॉब्लम। कोई और सवाल कर ले। अच्छा, जी वो जो मैं कर सकता हूँ? जी प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि द मेन थिंग इज इंसान को जो है अपने आप पे फोकस करे। बेसिकली जो मैंने ये खुलासा निकाला कि अपने आप पे फोकस करे, तो जैसे अपने आप को जैसे समझने की कोशिश करे या अपने आप गो इनसाइड, नो थायसेल्फ जैसे कहते हैं सारे सेजेस, तो उसके क्या तरीका होना चाहिए? मुनासिब या आसान या मुश्किल भी हो, मतलब क्या तरीका होना चाहिए? देखें, तरीका जो है वो नेचर ने खुद आपको प्रोवाइड कर दिया होता है। वो एक बहुत मशहूर सेइंग है जिसके मतलब कहा जाता है कि व्हेन द टीचर इज रेडी व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर। मेरा अपना फ्रैंकली एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ी हैरत होती है, हैरानगी होती है कि ये कुदरत ने कैसे कैसे हेल्प की। लेकिन ये है कि आर यू रेडी एट दैट मोमेंट, और आपकी जो इंटेंशन है कितनी स्ट्रांग है कि जहां आप उसको हासिल कर लेना चाहते हैं हर हवाले से। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे सकता हूं कि मैं जर्मनी में था और मुझे वहां से जो पहला टीचर आया ही वाज अकुल्टुस डॉक्टर अरोरा। वो इंडिया से आया और मैं जर्मनी में था। और जब ये सारे धक्के धुक्के खाने के बाद, ये सारी डिफरेंट जो हमारे प्रोसेसेस हैं माइंड साइंस में गुजरने के बाद, फिर मैं यहाँ पाकिस्तान में आ गया। तो जिस चीज़ की जो उस वक्त ज़रूरत थी वो उमर खान की शक्ल में हमारे सामने आ गया। हम पाकिस्तान में थे, अब वो हमें कभी अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन उस वक्त जो था मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त टीचर मुझे वहाँ से प्रोवाइड कर दिया गया। आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको तलाश में होना चाहिए। और दूसरी मिसाल मैं दे सकता हूँ कि जब मैं वापस आया तो किताबों के ऐसे ढूंढते फिरते, तो थिंक एंड ग्रो रिच जो नेपोलियन हिल की किताब मिल गई, फिर था जी कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसकी जोसेफ मर्फी की किताब मिल गई। तो मेरे लिए उस वक्त यही मेरे सवाल थे और यही सवाल मैं ढूंढ रहा था और उनके ही मुझे उस वक्त जवाब मिलना शुरू हो गए। तो एट द स्टेज जब आप उसमें रेड, देखिए डिफरेंट कॉन्शियस लेवल डिफरेंट है। आप किस कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर हैं उस वक्त, उसी वक्त वैसे ही सवाल आ रहे होंगे और उस वक्त उन्हीं सवालों के जवाबों की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आप इतना और कॉन्शियसनेस के सवालों के जवाब पूछना शुरू होंगे, वो नहीं आएंगे। तो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते हैं कि मजजूब लोग क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि वो बहुत आगे जाके पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पिछली चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए वो जो क्वेश्चन आपके सिंसेरिटी के साथ हैं, आप उसकी तलाश में हैं, तो कुदरत आपको टीचर प्रोवाइड कर देती है। Okay, Mariam, please go ahead. Yes, you can. My question, can you hear me now? Can you hear me? Yes. Yeah. Thank you so much for the wonderful workshop. Really, we wish we could really expand on all the things you touched on the bullets. Now, how does one master patience
when one is on the road to success, one is so eager to achieve something, whatever our goal is, that we become impatient with the people around us. So how do we master that patience? We want to be efficient, we want to be good to the people around us, but patience is something that, you know, personally, I am a very patient person normally, but I find that when people around me are not vibrating in the same wavelengths, because obviously we all vibrate in different wavelengths, it so happens that you become impatient. How to master that patience? I know meditation helps, I know all these things help, but something practical that we can use to master patience. Thank you. देखें, ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जब आप कहती हैं कि पेशेंस में जाना है. देखें, कुदरत से जब आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे सब्र दे, तो कुदरत क्या आपको कहती है? आपको डिफिकल्टीज में डालती है. ये आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि आपको ट्रेनिंग वो बार बार डिफिकल्टीज में डालेगी ताकि आप उसको जो एक्सपीरियंस, उसको पेशेंस को उसको आप एक्सपीरियंस करें, उसको आप लर्न करें, उसमें आप प्रैक्टिस करें. और फिर अल्लाह ताला उसको वादा करता है आपको कि जी नमाज और सब्र से काम लो. फिर ये वादा करता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के साथ हूं. जब आप ये प्रेयर करते हैं कि या अल्लाह मुझे ताकतवर बना, तो आपको क्या चीजें मिलेंगी? आपको कन्फ्रंटेशन मिलेगी. आप उस एरियाज को दबाव में लाया जाएगा जो आपका एरिया है दबाव वाला, ताकि आप मजबूत हो जाएं. जब आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे इल्म दे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको डाउट मिलेगा. आप डाउट में जाएंगे तो इल्म की हासिल करने की कोशिश करेंगे. तो ये एक तरह से एक ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है, और उस ट्रेनिंग के प्रोसेस में आपकी कैपेसिटी जो है एक्सपैंड होती जाती है. तो मैं समझता हूँ कि उससे ये नहीं कि मैं कैसे करूँ, एक हिस्सा है उस चीज का. मास्टरी आप कैसे हासिल करती हैं, ये एक वक्त के साथ साथ होता है. नेचुरली देखें, वो अल्लाह ताला ने आपको उसमें डालना होता है. ये मिसाल के तौर पे एक आदमी पावर हंग्री है. अच्छा, वो पावर के पीछे भागता रहता है, और एक वक्त आता है तो कहता है यार मैं किस चीज के पीछे भागूं, ये पावर क्या चीज है, इससे तो बड़ी दूसरी चीज है कि अल्लाह ताला के सामने मैं आकर सामने जाकर झुक जाऊं. फिर अल्लाह ताला उसको पावर दे देता है, लेकिन उसको साथ अमानत भी देता है. उस वक्त जो पावर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो पावर उस हायर पर्पस के लिए कर रहा होता है जिसके लिए वो पावर दे दी गई है. अब पावर उसमें ये नहीं कि उसे डंडा लेके लोगों को मारना शुरू करना है, बल्कि पावर ये है कि सेल्फ कंट्रोल है और कामनेस है, जिसको बुद्धा कहता है कि कामनेस है पावर. कामनेस आपकी पावर है कि आपने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया, इतने आप को काबू कर लिया कि अब आपको पावर अल्लाह ताला ने दे दिया. ही कैन डू दैट, लेकिन वो सब्र भी करता है, वो कामनेस में भी रहता है, और फिर वो लोगों को हेल्प करता है उस पावर के साथ उसको वदियत कर दी गई. मेरा ख्याल ये आपके हिसाब से ठीक है. Thank you very much. अच्छा, एक सवाल मेरा है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. उज़मा, आपने कहा कि इंसान, जैसे आपने मिसाल दी कि 45 इयर्स में वो मर जाता है, मगर दफनाया 80 इयर्स में जाता है, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा हैं या नहीं? हमारी मतलब हमारी जो आपने 45 इयर्स की जो मिसाल दी, तो हम ये कैसे जान सकते हैं? देखें, ये आपकी वाइब्रेशंस आपको खुद ही बता रही होती हैं आप कहाँ पे खड़े हैं, कौन सा एरिया है जो जिसको बेहतर करने की जरूरत है. और जैसे मैंने कहा कि ये वाइब्रेशन ही है ना आपकी. आप मिसाल के तौर पे, हम पहले कहते जी कि इस्तिखारा करें, पता लगा घंटों घंटों इस्तिखारा कर रहे हैं जी, जवाब ही कुछ नहीं मिल रहा है. और अगर जवाब मिल भी गया तो जो हमारी ख्वाहिश थी वो जवाब नहीं मिला. जवाब हमें क्या मिला कि हमारा जो लॉ ऑफ नेचर था उसके मुताबिक खुदावंद ताला ने हमें जवाब दे दिया, लेकिन हम उससे एग्री नहीं कर रहे होते कि हमारा इस्तिखारा ही ठीक नहीं निकला. लेकिन जब आप अपने आप को अलाइनमेंट में ले आते, उस फोर्स के साथ, उस ताकत के साथ, जहां से आप ये सारी चीजें हासिल कर रहे होते हैं, तो फिर आपको इतने लंबे तौर इस्तिखारे की बात भी नहीं होती. फिर तो वही बात आ जाती है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. आप इतनी अपनी सरेंडर कर चुके होते हैं अपनी विल को इन द विल ऑफ क्रिएटर, कि आप उसको कहते हैं कि जो तेरी रजा होगी मैं वही चाहूंगा. उस हवाले से उस वक्त हर वक्त उसको मिल रही हो. आपकी वाइब्रेशन क्या है, कितना सरेंडर कर चुके हैं, या कितना अभी भी मैं जो है आपके अंदर मौजूद है. हम ईगो को कहते हैं एजिंग गॉड आउट. तो जो खुद ही, जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो तब भी आती है कि व्हेन यू सरेंडर योर विल टू द विल ऑफ गॉड, कि मैंने अपनी खुदी को, और वो हम पढ़ते भी हैं खुदी का सिर्रे में, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहते भी हैं कि मैंने अपनी खुदी को सरेंडर कर दिया. तो जब आपने उसको गुलाम ना लिया, उसको सरेंडर कर दिया, तो नेचुरली उनको फॉलो करना पड़ेगा. जो वहां से टीचिंग, जो वहां से ऑर्डर, जो वहां से आपको मिलेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा. एंड वंस यू हैव डन दैट, तो फिर तो वो कहता है कि भाई
बता तेरी रजा क्या है, जो तू चाहता है मैं वैसे करूंगी. ठीक, थैंक यू. Okay, anybody else? Dr. Nargis, आप कोई कर लें सवाल. नादिर साहब सवाल तो एज सच मेरा नहीं है, मगर लॉट ऑफ एप्रिसिएशन कि आपने वो सब कुछ हमें इतने कम टाइम में याद करा दिया, NLP की पूरी प्रोग्रामिंग, जो कि जिसमें से बहुत कुछ हम भूल जाते हैं टाइम के साथ साथ, और फिर हम इसीलिए आपको दोबारा कांटेक्ट करते हैं कि प्लीज हमें वो याद करा दें. तो माशाल्लाह से हर चीज आपने उसके अंदर कवर कर ली है. तो ये है कि अब अल्लाह करे कि हम अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सकें आसानी से, और फिर हासिल करने के लिए जो कुछ भी रास्ते होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो जब हम स्ट्रेंथ मांगते हैं तो जाहिर है टफ टाइम्स आएंगे, तो तभी तो स्ट्रेंथ आएगी. तो उनमें से हम स्मूथली गुजर जाएं. और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी अगर फौरन हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी याद आ रहा है, तो अगर लेटर किसी स्टेज पे हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें, या दोबारा आपको जूम पे ही इनवाइट करना चाहें कि बाद में कोई क्वेश्चन हमारे जहन में आए या कोई हर्डल जो हमसे उस वक्त हैंडल नहीं हो रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ रहें. एंड डेफिनेटली वी वर रेडी, दैट्स व्हाई यू अपीयर्ड. So thank you so much. बड़ी खुशी हो रही है. Welcome that. मैं खुद रिफ्रेश होता हूँ फ्रैंकली, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो डाई एम्प्टी वाली बात है कि भाई आप खाली करके अपने आप को जाएं. तो उसका एक तरीका तो ये हो सकता है, जैसे आपने सवाल की बात की है, कि आप वो सवाल लिख रहे हैं, मुझे बिल्कुल फॉरवर्ड कर दें कि ये क्वेश्चन हमारे, उसके बाद फिर बेशक एक जूम मीटिंग रख लें जिसमें मैं उन सवालों के जवाब भी दे सकूं, उनकी बात भी कर दूं. और जैसे मैंने ये कहा कि वो रीमेंबर करने वाली बात है, अपने आप को कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, सारे इटर्नल ट्रूथ्स हैं जिसको हम दोबारा बार बार हमारे सामने आते हैं, हम उनको करते हैं, और फिर हम उसको, यानी ये हर चीज की 5 नमाजें पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह बार बार कहता है कि इसको रिमाइंड करते रहो, रिमाइंड करते रहो, रिमाइंड करते रहो, तो रीमेंबर भी करो, रिमाइंड भी करो. जालमा कोका कोला पिला दे, तो कोका कोला आज नई बात तो नहीं है ना, लेकिन आज भी वो हमारा एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जालमा कोका कोला. मतलब ये बार बार कहने की या करने की जरूरत इसलिए है कि वो जो चीजें हमारे अंदर जो है अलाइव रहें, ये कहीं पीछे ना चले जाएं, कहीं इसमें हमारे सिस्टम से आउट ना हो जाए. हम उनको बार बार रिविजिट करते रहें ताकि हम उनसे बेहतर सीख सकें. तो ये जो इकबाल एक क्वेश्चन करना चाह रही हैं. जी जी जी. अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? जी आप अपने अपना वीडियो भी ऑन कर दें. अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड ऑन. 1 मिनट बहुत ज्यादा है. अच्छा थैंक यू. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, और हम लोग आपके लेक्चर से मुस्तफीद हुए. एक अपने लेक्चर में जो एक बात किंग की मिसाल दी, जो कि एक दरिया के किनारे से गुजरता है और एक समझो वहां से गुजरते हैं, तो और उसके उस शख्स की जिंदगी में कोई ऐसी अचीवमेंट्स भी नहीं होती. वो कहता है कि मैं मतलब एक इस बात का एक तो अल्टीमेटली एक बहुत खूबसूरत पहलू आपने बताया, लेकिन एक दूसरा पहलू क्या ये भी हो सकता है कि वो बैठा हुआ है, वो बिल्कुल फारिग है और वो कह रहा है बस मैं खुश हो रहा हूँ, जबकि वो सिकंदर जब वो बंदा जो है उससे किंग से पूछता है कि तो आपने क्या करना है, तो कहता है जनाब मैंने ये फतूहात करनी है, मैंने ये विक्ट्रीज करनी है, मैंने इस इलाके को फतह करना है, मैंने ये करना है, मेरी ये अकम्पलिशमेंट है, मेरी अचीवमेंट. तो जो किंग था उसके पास एक जिंदगी के टारगेट्स थे, गोल्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जबकि वो जो शख्स जो दरिया के किनारे बैठा हुआ था वो सिर्फ खुश हो रहा था. तो क्या सर इसका एक ये पहलू भी है कि जिंदगी में हम भागते हैं, दौड़ते हैं और बहुत ख्वारियां उठाते हैं और बहुत सारी जो है स्ट्रगल्स करते हैं, तो क्या उनको छोड़ दिया, तर्क कर दिया जाए बहुत सारी दुनियादारी को,
اور صرف الٹیمیٹ گول ہے اس کی طرف اپنا رجحان وہ کیا جائے. اس کا تھوڑا سا اور اس کو اس کے اوپر بات کیجیے گا سر. اس کا میں جو پہلے ہی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, بات کر چکے ہیں کہ اس میں بیلنسنگ کی ضرورت ہے, بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. سکندر اعظم نے الٹیمیٹلی کیا کیا, وہ صرف آپ کو ایک جو ایریا تھا لائف کو اس کو لے کے چلتا رہا نا, اور الٹیمیٹلی اس نے کیا پھر میسج دیا جب اس کو اس کی لرننگ اس کا حاصل اس کو مل گیا تو اس نے کیا میسج دیا کہ لایا تھا کیا سکندر کیا لے گیا جہاں سے تھے دونوں ہاتھ, انہیں میسج کیا دے کہ میں کچھ نہیں جا رہا, یہاں سے خالی آیا تھا خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. اس کو اس کا میسج مل گیا. میں نے دیکھا جو بہت لوگ زیادہ صرف سچائی کی تلاش میں چلے جاتے ہیں اور دنیا کو تیاگ دیتے ہیں. تو اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے خود اپنے ایکسپیرینسز میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو تعویذ دے رہے ہیں بانٹ کے, اور گھر والے جو ان کو روٹی بھی نہیں ان کو پکا کے دے رہے ہیں, بچے جو ستیاناش ہو رہا ہے ان کا. تو جو بہت امپورٹنٹ جو مینٹل ہیلتھ کا ایک انگریڈینٹ جو میں نے آپ کو ایک بیلنس کا میں نے بتایا, لیکن دوسرا جو بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کہ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی آف یور لائف ان آل ایریاز آف یور لائف. اور جو آل ایریاز ہے وہ میں نے 4 آپ کو بتا دیے ہیں. اس میں آپ کی ایموشنل نیڈز بھی ہیں, اس میں آپ کی جو ہے وہ اسپرچل نیڈز بھی ہیں, اس میں آپ کی فزیکل نیڈز بھی ہیں, اس میں آپ کی انٹلیکچوئل نیڈز بھی ہیں. اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے مثال کے طور پہ کہتا رہوں گا کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ سارا کچھ کر دے گا, تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ہم کرتے کیا ہیں کہ بھئی ہمارا پی اے کا جہاز جو وہ میں نے مثال دے دی ہے کہ ایک لیفٹ برین ہے ایک رائٹ برین ہے. لیفٹ برین جو وہ صرف ریزننگ کے پیچھے جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں ان کے متعلق میں جان سکتا ہوں, مجھے داڑھی نہیں کٹواتے تھے, اخیر مدینہ شریف چلے گئے اور جہاں امام صاحب سے پوچھا کہ جی مجھے حدیث بتائیں, انہوں نے آگے ہنس کے کہا کہ جی صاحب آپ اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے بارے. اور ہمارے ہم یہاں کیا کرتے ہیں مثال کے طور کے اوپر جہاز باقاعدہ تفتیش ہوتی ہے سارا کچھ کہ جہاز کیوں کرا تھا کہ آئندہ سے یہ غلطی نہ ہو. اور پھر دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ بکرے کا صدقہ دے دو بس اللہ خیر سے پی اے کی فلائٹ جانی جانے دو. تو نہیں, دونوں کی ضرورت ہے. آپ اس کو پھر انجینئر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو بیلنس کرنا ہے. اور وہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ارسطوٹل کی مثال دے کے کہ ورچو جو ہے 2 وائسز کے درمیان, ایکسٹریمز کے درمیان ہے. ہر چیز جو ایکسٹریم ہے وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے کہ یہاں کی رسپانسبلٹی کو کیسے شیئر کریں. اور وہی میں نے آپ کو دعا کا دیا, رسول کریم کی بہترین دعا کیا تھی کہ اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی. تو کیا وہ اگلی دنیا ارننگ کرتے, کہیں ان کی رول ماڈل اگر ہم ان کو لے لیں تو کیا انہوں نے ذمہ داریاں نہیں سنبھالی ساری, کیا دنیا کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. اخیر جو آپ نے انہوں نے الٹیمیٹ اپنے جو گول حاصل کر بھی لیا تھا, پہنچ بھی گئے تھے وہاں پہ, پھر بھی وہاں سے کہا لیٹ می گو بیک, مجھے واپس جانے دو تاکہ میں باقی لوگوں کو یہاں پہ لے کے آ سکوں. تو وہ جو ہے نا اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. دونوں ایریاز ہیں جس کو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں, جن میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ایک سول کا ایریا ہے, ایک مائنڈ کا ایریا. ہم اس میں کیسے بیلنس لے کے آتے ہیں یہ ہمارا نیچرلی یہی ہمارا ٹیسٹ ہے, اسی میں ہم اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. رضوان. ہاں جی رضوان سر, ہمیشہ ہی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے جو آج دریا کو کوزے میں بند کیا ہے کہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, یہ شاید ہم سب لوگ ہی اس میں کسی نہ کسی حد تک کمزوری کا ہے ہماری کہ ہم جو ہے کسی ایک طرف انکلائن ہو جاتے ہیں بیلنس کرنے کے بجائے. رضوان یہی تو چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو پتہ ہے کہ ہمارے شعور میں چیزیں وہ نہیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لا شعور میں ہیں اور وہ شعور میں نہیں ہیں, وہ آپ کو ہٹ کرتی ہی رہتی ہیں. اور ایک چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر بیٹھے ہیں کہ میک یور انکانشیس کانشیس, آپ اپنے لا شعور کو شعور میں بدل لیجیے, ادروائز اٹ ول ڈکٹیٹ یور لائف اینڈ یو ول کال اٹ یور ڈیسٹنی. یہ کارل جونگ کہتا ہے کہ اپنے لا شعور کو شعور میں لے آئیں, اس کے اویئر ہو جائیں. اور میں آپ کا ہی مجھے سوال ابھی تک یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ لرننگ کی 4 سٹیجز ہیں. فرسٹ سٹیج یہ ہے کہ we do not know what we do not know. سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ now we know what we do not know. اور تھرڈ سٹیج یہ ہے کہ ہم لرننگ میں آتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیسے قابو پائیں. اور پھر وہ آپ کے انکانشیس میں چل جاتی ہے اور آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے. یہی تو پروسیس ہے جو ہمیں پہلے اویئرنیس میں آنے کا, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا. ٹرانسفارم ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو پہلے آپ جس پہ چل رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا. بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے, A+ دے دیا ہے. اور میں ایک دفعہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں جینیس ڈپ کے حوالے سے
کہ 4-5 साल तक हर इंसान के पास मल्टीपल इंटेलिजेंसेस अवेलेबल हैं। उसके बाद जो होता है कि बेटा ये नहीं करना, ये गलत है, ये बुरा है, ये सही है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये अराई है, ये तक जो भी हम इसको करते हैं और उसको हम उसमें तकसीम करना शुरू कर देते हैं। वो जो उसकी वननेस है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो तो आपने डैमेज कर दी पहले दिन से। अब उसके बाद आपको तलाश शुरू होती है कि यार मेरा ये रहेगा, ये मेरा, तो हम तो एक्चुअली डिक्टेट किए जा रहे होते हैं और उस डिक्टेशन के हवाले से ही हम उसको फॉलो कर रहे थे। और उसमें फिर वही बात आ जाती है कि आप रीजनिंग माइंड की तरफ जाते हैं तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, लाइक आइंस्टाइन बन गया, लेकिन उसको भी कन्फ्रंट करना पड़ा जब उसने कहा कि आई ओनली वांट टू नो द थॉट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का ये जानना चाहता हूँ कुदरत क्या चाहती है, द अदर्स आर मेयर डिटेल्स, वो उसको पता नहीं है। और यही फिर उसका चैलेंज बन जाता है कि मैं उसको कैसे पता करूँ कि जो कह रहा है कि भाई ये हो नहीं पा रहा मुझसे, हर चीज तो मैं जानता हूँ। उसको जानने के लिए फिर उसको दूसरी तरफ जाना पड़ता है और अपनी सोल की तरफ सोल सर्चिंग करनी पड़ती है, तो फिर वो बैलेंस कर पाता है। और इसी हवाले से कहा जाता है कि वो दोनों ब्रेन्स को इस्तेमाल करता था। तो मैं वहाँ जो है ना, हाँ, ये 4 एरिया जो मैंने बताया, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम इसका वर्कशॉप हम रख लेंगे। आई डू नॉट नो हाउ, लेकिन वो ज़ाहिर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर एरियाज के क्वेश्चंस हैं। आप लिविंग एरिया में कहाँ खड़े हैं, आप लर्निंग एरिया में कहाँ खड़े हैं, आप लिविंग लेगेसी एरिया में कहाँ खड़े हैं, और आप जो है वो लविंग एरिया में कहाँ खड़े हैं, इमोशनल स्टेट्स आपकी क्या है, और फिर आप इन एरियाज में कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप उनको राइट कर लीजिए। ऑलरेडी स्टडी इज देयर कि 9 जिम्मेदारी से जिंदगी की वो निभाई नहीं, ना सही से किसी की हेल्प कर सके, आगे जा रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो कहाँ की सारी चीजें, उन्होंने कहा कि पहले दिन पिता ने कहा भाई कौन सी लिस्ट है तुम्हारे हाथ में, उसने कहा जो अल्लाह जिनको बहुत प्यार करता है, उनका मेरा ना सॉरी जो अल्लाह बहुत लिस्ट है, उसने ये वो लिस्ट है जिसको अल्लाह बहुत प्यार करता है। उसने कि मेरा नाम कहाँ पे है, उसने कि सबसे ऊपर है तुम्हारा नाम। तो बात ये है कि जब हम यहाँ भेजे गए हैं तो हम किस काम के लिए भेजे गए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है मैं समझता हूँ। और यही ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है कि व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ दिस, फिर आप अपने को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, उसमें नेचुरली आपको मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो जो रिजिड वैल्यूज है ना, उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है, उनको आपको ओवरकम करना पड़ता है, और वो चैलेंज है, वो आपको माफ करने देता नहीं है। तो मेरा ख्याल ये चैलेंज मौजूद रहता है। बहुत जबरदस्त है, शुक्रिया। अगर किसी और को सवाल करना हो तो प्लीज गो अहेड। मैं नादिर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन थी वो हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, तो दोस्तों के काम आ जाएगी। नहीं, ये तो आपने रिकॉर्ड आज कर लिया सारा ना? नहीं, मगर उसकी जो पीडीएफ जो प्रेजेंटेशन है पीपी, अच्छा, हाँ, तो वो व्हाट्सएप पे हो कर दूंगा। जी जी, हाँ, वो मैं कर दूंगा, लेकिन जो आपने वो ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो आपने ये रिकॉर्ड हो गया हमारा सिस्टम आज? जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो ये थोड़ी देर में हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो हाजिर हूँ जी, आप जब भी इंशाल्लाह कहेंगे। तो मैंने जैसे कहा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो क्वेश्चंस होंगे कुछ, तो बेशक क्वेश्चंस कीजिए, मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए, और फिर एक वक्त रख लीजिए जैसे हम आज इकट्ठे हुए हैं, फिर ऐसे किसी भी इकट्ठे होकर उन सवालों के जवाबों के ऊपर बात करते हैं। बल्कि वो जो 4 पॉइंट वाला जो एजेंडा है वो हम मैं यही रिक्वेस्ट करने वाली थी कि एक तो हमें आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम दे दीजिए, क्योंकि असल बात यह है कि सिर्फ इसको हमें इंटेलेक्चुअली तो नहीं देखना है, जो आपने इतना सॉलिड हमें इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो हमें इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, यानी हम अपनी सक्सेस के जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, गोल्स लिखे हुए हैं, उनको हम रिव्यू करें अकॉर्डिंग टू दिस,
what is most important, what is Fazul Mubin for us, what actually we are doing, where is our teacher, बिल्कुल हम do we listen to our teacher or not, things like that. तो जब हम उसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो असल क्वेश्चंस तो तब हमारे जहन में आना शुरू होंगे. चलो मेरा तो ख्याल एक तो हमें टाइम आप दीजिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और ये जो एक आपने 4 L's का जो एक्सरसाइज आपने बताई है, अगर वो हमें आप करवा देंगे तो दैट विल बी ग्रेट. वो मेरा ख्याल है ये जो आप उसकी एक्सरसाइज की बात कर रही हैं 4L की, वो अगर 1 महीने के बाद हम ईद के बाद रख लें. जी जी, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी. एक्चुअली लॉकडाउन में तो हम सब फ्री है ना, कोई टाइम जो भी टाइम आप कहेंगे तो हम मौजूद हो जाएंगे. तो इसलिए आई वुड प्रिफर कि आप विद इन लॉकडाउन ही कर दें, अदरवाइज फिर हम जाहिर है पुराने धंधों में मसरूफ हो जाएंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके. जी जी हाँ बिल्कुल, हम शुजा के साथ आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो. माशाल्लाह फिर हम उसके लिए अपना पेन पेपर लेके तैयार रहे और हम अपना एक्शन प्लान उसमें लिखें. मुझे इनके एक्शन का भी अंदाजा हो रहा है कि इनको पहले क्यों नहीं इतना यूटिलाइज किया. अच्छा, इसमें वो करते तो रहते हैं फिर भूल जाते हैं ना. मैंने कहा जैसे आपने कहा रीमेंबर करना जरूरी है, तो वो हम भूल जाते हैं. दैट्स द रोल ऑफ द टीचर इन आवर लाइफ. तो टीचर्स जो हैं वो जो हमें फिर कान पकड़ के वापस रास्ते पे लाते हैं कि तुम कहाँ निकल गए थे, ये था मैंने ये कहा था, तुम वहां चले गए. तो इसलिए जी जी थैंक यू सो मच. बिल्कुल हमारा दिल से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें सब ये समझाया सिखाया, और आप प्लीज हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. रमजान मुबारक आपको, और सदफ और तहसीन को भी बहुत सलाम प्यार कहिएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. Thank you so much.